Good evening. Good evening. Shall we start, Mira? Yes, ma'am. Okay. Okay. A very good evening, esteemed faculty for today, Trapti Gandhiji, coordinator for today's session, Meera Shah, Women Members Empowerment Committee coordinators, Shikha, Chitra, Nisha, Hetal, and Charmi, and my dear friends. Welcome back to this amazing series which we have started last year, thanks to Corona, that virtual is now the need of the hour and it has become the new normal. And we are glad that esteemed faculty like Trapti Gandhiji and many more faculties are supporting us in this. And every time we are able to get wonderful faculties. So we are continuing this series. We are planning to have twice a month Kaleidoscope, a journey within, and we will continue with twice a month, two sessions, 15 days. And I congratulate Mira for arranging a wonderful faculty for us. Before we take the session ahead, I will just share the thought process and the initiatives which we are going to take in the Women Committee. But before that, our chairman, our energetic and dynamic chairman, CA Harit Dhariwal, is with us. I request chairman to share few words with us, and then I share about the Women Committee members' initiatives. Over to you, chairman. Yeah, thank you, Anjali Ben. So, respected faculty for the session, Mrs. Trapti Gandhi ji, the secretary of the branch and the chairperson of the Women Committee, C. Anjali Choksi, and all the coordinators for the Women Committee. First of all, let me congratulate all of you for again a wonderful session planned today. Women Committee is working extremely hard under your leadership, and I'm sure this year we are going to do a lot of newer programs also. Today's topic, as I was thinking, keep calm and lead on. I think this should be open for all. Why only women? I think because this is something even men, anybody in that for that matter would require. Because right now we all are working under different kind of pressure. Work pressure is a different thing. This is something on a different scale that we are getting pressures, and also it's very important that we all should maintain that calm. And it's a very right time that you have organized such a wonderful session. And I'm sure the sessions like these will not only help the women members, but also we can even float it on a general level to all the members on the YouTube. They can also go through it and take a benefit of it. Uh, just I would like to add on that keep calm and lead on. So I think also keep calm and participate in the movement 73. I think this is something which we all are very passionate on. So to handle all your pressures, all your anxieties, we all will be working out and doing fitness activities together. So those who are not registered, we have 2 more days to go for registration. So please participate in this fitness carnival, and I'm sure we all will be having a great time in this. I once again thank you to the faculty, Trapti Ben and Anjali Ben for such a wonderful session today that we are having. Thank you. Thank you, Chairman. We are going to remain calm for our life. And the moment 73, we are always super activated and charged up. Uh, Taking the session ahead, sharing a few initiatives which we are planning next month. Next month being the vacation month for kids, we are planning lots of activities for kids. Bhumika ma'am is there, is taking care of those activities. If you have anything in your mind कि आपके किड्स को ये करवाना है वर्चुअल में, आर्ट एक्टिविटीज, क्राफ्ट एक्टिविटीज, एनीथिंग इफ यू हैव इन माइंड, do share with me or any of the committee members. Secondly, we are also planning, just had a discussion with Nisha and Hemaben today. We are planning to create a database for those female chartered accountants who are looking for flexi working hours. Being a work from home now in many of the corporates, we are trying to have a database for those women chartered accountants who want to work for few hours in a day. So that kind of database we are creating. Soon you will get the details of that. Secondly, we're also trying to have a tie-up with many of the organization, health being the first one. Corona has taught us that health is the
primary thing and nothing matters much. So we are going to have tie-up with many of the health organizations, especially for women as well as for male members, in terms of various kind of tests available at reasonable prices to us, medicines, and many other tie-ups are going on. If you have any other suggestion, do let us know. And I would request all of you to keep your videos on, because virtual abhi ye hamare, this is the way of life. So it will be glad. Nisha is nicely decorated. I can see Charmi, Shikha, Neha. Yes, welcome Hiral. It has been long time looking at you. Monica, please keep your videos on. uh, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिवनेस आएगी आप लोग को हंसते देख के, that you all are there. So welcome once again, and I would now request Meera to take the session ahead. Thank you so much, Harit sir, Anjali ma'am, for your inspiration. So first of all, my camera has some issue and I am not able to put it on. So apologies for that. So good evening, everyone. A very warm welcome to everyone on this bright sunny afternoon. Hope everyone is safe and taking necessary precautions. Today we have with us Ms. Trapti Gandhi ji as our esteemed speaker to guide us on the subject of managing emotions under control, keeping calm, and lead on. She holds Master of Science in Counseling and Psychotherapy and MA in Psychology. She also holds PG Diploma in Psychological Counseling. Following her academic background, she is the founder of Ekagra, a venture through which she enables and empowers people with the skills to focus on their positive self. She has helped scores of people to deal with their life issues and help them become confident individuals. She has conducted over 500 workshops in her stint of at least 14 years and has influenced more than 1,000 souls towards positivity. She has tie-ups with various corporates, schools, and communities, including Adani Ports and Logistics, Delhi Public School, CalRX Public School, All Ladies League, First Moms Club, Adani DAV, Parvarish Preschool, Eurokids, SGVP, Rangoli School, and the list is long. So, thank you so much for accepting our invite, and it's a pleasure to have you here. Thank you, ma'am, on behalf of entire Ahmedabad branch of ICI. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you so much, everyone. Before I start, एक selfie हो जाए तो please 5 minute के लिए camera on कर ले, so we can take one picture. Wonderful. Am I allowed to be a part of missed- this selfie? I don't know. Should I I log missed, off? I And I missed like that, madam. Thank you so much. And I like See the selfie effect. Ma'am, we for have everyone. chartered accountants. Hi, we have chartered accountants, ma'am, across the country. Vanna ji from Bombay, Pooja Traika from Amritsar. Welcome all, and yes, glad to see you સેલ્ફી all. ટાઈમ ને એટલે મેં Selfie તરત time. આમ ચાલુ કરી લીધું. I am fond of photographs, you know. We'll keep taking photographs, smiling, laughing, enjoying. So put हाँ, your मैं- cameras on. ये ज़्यादा मजा आएगा. आपके Yes. expressions देखने में. Right. Thank you so much. See, look at my smile. आप सबके चेहरे देखिए, मेरे चेहरे पे बहुत automatic smile आ गई है. Keep the cameras on and mics on mute. Thank you so much. I hope everyone is able to hear me properly. आप सब लोग मुझे ढंग से सुन पा रहे हैं? Yes, great. Yes, ma'am. Thank you so much. Okay, जब आज का टॉपिक निकला है मैनेजिंग इमोशंस अंडर प्रेशर, तो पहले प्रेशर क्या है? डेफिनेटली आप सबको तो पता ही है कि प्रेशर क्या होता है. सीए वालों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा प्रेशर के बारे में? इतना लंबा प्रेशर, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस. मुझे तो नाम से पसीने आते हैं कि सीए, ओ गॉड. तो इस प्रेशर की अगर बात करते हैं, तो जब भी ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है तो हम लोग एक सेफ जोन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने आप में, ताकि हम प्रोटेक्टेड रह सकें. जैसे आज ही का सिचुएशन लीजिए कि सबके कैमरे बंद थे, आपने अपने अपने सेफ जोन क्रिएट करके रखे हुए थे, या तो प्रेजेंटेबल नहीं थे, जैसे ही सेल्फी बोला बाल वाल ठीक होना चालू हो गए, या फिर कम्युनिकेशन इंटरेक्शन करना पड़ेगा तो एक प्रेशर क्रिएट हो गया. तो ऐसे लाइफ में छोटे छोटे प्रेशर्स तो आए दिन हमारे क्रिएट होते ही रहते हैं, हम उनको मैनेज कर भी लेते हैं बहुत आराम से.
लेकिन कभी कभी ये जो डिमांडिंग लाइफ है जिसमें नॉन स्टॉप हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनका सामना करना पड़ता है, और प्रेजेंट जो सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में जो है, उसमें तो प्रेशर का आप कुछ कह भी नहीं सकते. इट इज गोइंग बियॉन्ड आवर कैपेसिटी. तो आज ही से एक चैलेंज लेते हैं. 2 रास्ते आपके पास हैं. या तो अपने आप को चैलेंज करें, व्हाट द हेल, आज ही से प्रेशर हैंडल करना हमें चालू करना है, और आज ही जो बताया गया है उसको यूज करना है. So let's start today. Keep your cameras on whether you want it or you don't want it. This is the pressure from my side and you are trying to handle that. तो ऑन करके देखें, या फिर दूसरा रास्ता भी है which you can opt, कि भगवान भरोसे छोड़ दें, कोई चमत्कार होने की वेट करें, या तो अपने आप पे विश्वास करें या चमत्कार का वेट करें. आपकी मर्जी है, मैं आप पे छोड़ती हूँ. अगर अपने आप पे विश्वास है तो सारे कैमरे ऑन रहेंगे आज पूरा 1 घंटा जब तक हम बात कर रहे हैं. लेट्स सी, लेट्स मूव फर्दर. अच्छा, डू यू थिंक आप लोग ऐसे लोगों को पसंद करेंगे जो थोड़े फेवरेटिज्म करते हो, या फिर साइड्स लेते हो, या फिर सेलेक्टिव बिहेवियर हो? आपको लगता है ऐसे लोगों को पसंद करा जाना चाहिए? No. No. एब्सोल्युटली नो. मेरे ख्याल से कोई भी पसंद नहीं करेगा, राइट? अगर यही चार्ज हम सब पे लग रहा हो कि हम सब ये करते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? विल यू फील बैड? यही चार्ज अगर आप सब पे, हम सब पे लगाया जाए कि हम फेवरेटिज्म करते हैं, सेलेक्टिव बिहेवियर करते हैं, या फिर हम साइड्स लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं लगेगा. जैसे वो चीज ही नहीं पसंद है तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा किसी भी सूरत में. मैं बताती हूँ कि वो चार्ज हम पे क्यों लगता है. अगर छोटा सा कट आ गया बॉडी पे, छोटा सा भी कट आ गया, हम भाग के जाते हैं, बैंडेड लगाते हैं. चेहरे ठीक नहीं थे, हमने फटाफट से अपने बाल ठीक करे क्योंकि सेल्फी लेना था. सुबह वॉकिंग बिल्कुल जाएंगे, जिमिंग करेंगे, फूड अच्छा लेंगे ताकि हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है वो ठीक रहे. तो फिर ये सेलेक्टिव बिहेवियर सिर्फ मेंटल हेल्थ के साथ ही क्यों? अगर हम स्ट्रेस में हैं तो भी दबाते हैं, दुखी हैं तो भी सप्रेस करते हैं, डर है तो भी भूलने की कोशिश करते हैं. तो ये सेलेक्टिव बिहेवियर क्यों? जब शरीर का हम अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, छोटा सा बच्चा भी होगा, अगर वो शरीर का पता है उसे लग गई, मम्मी चोट लगी है, बैंडेड लगा दो, बट हम बच्चे को ये चोट के बारे में तो बता देते हैं, बट इमोशन जो हमें तकलीफ देते हैं, प्रेशर में तो और ज्यादा मल्टीप्लाई होके तकलीफ देते हैं, उनका केयर करना, उनकी हाइजीन मेंटेन करना क्यों नहीं हम बात करते? तो डेफिनेटली ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, या रेदर यूं कहें कि हमने कभी इस पे तवज्जो ही नहीं दी, और या प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं है. तो अगर आपने नहीं रखा है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आज से स्टार्ट करिए. प्लीज इसको अपनी लिस्ट में से बाहर मत करिए, अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए. इसका रीजन मैं बताती हूँ कि अगर इसका आपने ख्याल रखा तो आपका बचा हुआ जो भी एक्टिविटी है, चाहे इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, रिलेशनशिप हो, या कोई भी एक्टिविटी हो, फिजिकल हो, वो मल्टीप्लाइड स्पीड में आप अचीव कर सकते हो. वो कैसे? आई विल गिव यू एवरी डिटेल अबाउट इट. पहले आज हम बात करने आए कि प्रेशर को हैंडल करना, इमोशन, प्रेशर के समय इमोशन को हैंडल करना. हम सिर्फ फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं. अगर मैं आपको बताऊं कि इमोशन एक ऐसा पावर है, एनर्जी है, जिसको यूज किया जा सकता है, रिसोर्स है ये, जिसको यूज किया जा सकता है कि आपकी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी जो भी है उसको स्पीड अप किया जा सकता है, ताकि आप उसको उससे बेनिफिट ले सके. तो हम तो अभी सर्वाइवल वाली ही बात कर रहे हैं, फ्लरिशिंग, थ्राइविंग वाली तो हम बात ही नहीं कर रहे. सो इफ यू स्टार्ट टुडे फोकसिंग ऑन सर्वाइविंग, आज से अगर आप चालू करते हैं कि सर्वाइविंग का हम सोचें,
तो कुछ समय बाद हम फ्लरिशिंग और थ्राइविंग का भी सोच सकते हैं, और ये पॉसिबल सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस से ही है। इमोशंस की पावर को, इमोशन एक रिसोर्स है, उसको पहचान के ही हम ये कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट के पैकेट पे जरूर लिखा हुआ आता है कि जो हेल्थ एडवाइजरी लिख के आती है, बट जो एक्टिविटीज होती है, झगड़े होते हैं या दूसरा कुछ भी होता है, वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ आता कि झगड़ो मत, स्ट्रेस में मत रहो, डेंजरस टू योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वहां पे कहीं पे कुछ ये एडवाइजरी लिखी नहीं आती, इसीलिए हम उससे अनजान हैं। तो ये सारा चीज ना हो हमारी लाइफ में, इसके ऊपर थोड़ा लाइट कोशिश करें कि ये क्या चीज है। As I said, emotion is energy in motion. एनर्जी इन मोशन, ये हमारा लाइफ है, हमारा जो प्राण बोलते हैं अंदर की, वो है। यू कैन नॉट लिव विदाउट इमोशन। इमोशन हर क्षण, हर एक क्षण आपके हर एक्टिविटी से उभरते ही रहते हैं। आइदर यू आर नॉट अवेयर, आपने या तो उसको दबा दिया है या उसको अनदेखा कर दिया है, पर वो तो आएंगे ही। और जब वो मल्टीप्लाई होके बढ़ के आते हैं, तब फिर हम इधर उधर फायर फाइटिंग के लिए भागते हैं। तो ये जो एनर्जी है वो क्यों है हमारी बॉडी में, कुछ तो पर्पस होगा उसको। न हमें हाथ बिना कारण मिले हैं, न पांव बिना कारण मिला है, न हार्ट बिना कारण मिला है, न सर बिना कारण मिला है। तो इमोशन बिना कारण कैसे हो सकता है? कैसे हम बोल सकते हैं कि डरो मत, डरने से खराब हो जाएगा? डरना जरूरी है, क्यों जरूरी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अति, बैलेंस, बिल्कुल नहीं डरना और अति डरना, ये दोनों खराब है। बैलेंस कैसे है, न्यूट्रल आप कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। अगर यूज नहीं कर पाए तो होगा क्या? पहले यूज करने के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि आप लोग का ध्यान उतना ना जाए, तो पहले से थोड़ा डराना जरूरी है कि यूज नहीं करेंगे तो होगा क्या, कि क्या हो सकता है, अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, ऐसे वाले जो मम्मी बचपन से डराती थी। तो ये भी है कि अगर इसको यूज नहीं करोगे, उसको अनदेखा करोगे, सप्रेस करोगे, तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। सर्वाइवल के लिए झगड़ा चलता रहेगा, परेशानी से उभरने के लिए मेहनत चलती रहेगी। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं टूट जाए, डिप्रेशन आए, या फिर आपको पता है उससे ज्यादा भी क्या क्या होता है, आए दिन सुनने को मिलता है। बिकॉज हम इमोशनल हेल्थ जो है, इमोशन की जो हाइजीन है, उसको हम मेंटेन नहीं करते और वो लूप में चलते जाते हैं। एक कार का एग्जाम्पल अगर मैं आपको सिंपल दे दूं, या कोई भी ऑटोमोबाइल, आपको सडनली चाबी दे दी जाए और कहा जाए कि आप चलाओ, जाओ बैठो और चलाओ। आप ट्रैफिक में आप चलाने की तो खैर कैसे तैसे देखा होगा पापा को या किसी और को पहली बार चलाते हुए, तो पता है क्लच ब्रेक क्या है, थोड़ा बहुत ठोका ठाकी करके निकल ही जाएंगे। लेकिन ट्रैफिक में फंस गए तो वो ठोका ठाकी कहाँ चलेगी, वो प्रेशर वाला सिनेरियो है। इसी को हम अपने इमोशन से कंपेयर करते हैं। जो आपका ऑटोमोबाइल है वो आपका एनर्जी है, इमोशन की एनर्जी है। ड्राइवर कार में आप हैं और थॉट्स आपके इमोशन का थॉट्स आपका ड्राइवर है एनर्जी का। जो रोड है जिसपे आप कार चलाते हैं, वो यहाँ पे बिहेवियर है, जिससे आप, वो बिहेवियर से आप इफेक्ट तक पहुंचना चाहते हैं। जो डेस्टिनेशन कार पे पहुंचती है वो इफेक्ट्स हैं। अब मानिए कि आपको न कार की जानकारी है, यानी इमोशन की भी जानकारी नहीं है, ना आपको थॉट्स की जानकारी है कि वो ड्राइवर कैसा है या कैसा नहीं है, अच्छा भी है या नहीं है। तो वो थॉट्स हो सकता है आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएं या पॉजिटिव, आपको पता ही नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। तो बिहेवियर भी आपको पता नहीं होगा, यानी ड्राइवर अच्छा नहीं है तो रास्ता भी पता नहीं होगा। रास्ता पता नहीं होगा तो कहाँ पहुंच रहे हो ये भी नहीं पता है, यानी इफेक्ट क्या होगा आपके बिहेवियर का ये भी नहीं पता है। तो वही चीज हमारे साथ हो रही है। कार तो हम बहुत अच्छे से चलाना सीख लेते हैं, या कोई भी ऑटोमोबाइल हम अच्छे से चलाना सीख लेते हैं, पर क्या हम अपने इमोशंस को समझकर प्रॉपर यूज कर अपने बिहेवियर को अपने हिसाब से बना सकते हैं क्या, और उसका इफेक्ट अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं क्या?
ये क्वेश्चन अपने आप से सबसे पहले पूछने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर नहीं कर पाएंगे तो वो जो नेगेटिव लूप है उसमें फंसते चले जाएंगे। एक चीज हुई, सोचा, दूसरी चीज उतने में तुरंत हो गई, वापस से वही सोच आए कि पिछली बार हम नहीं कर पाए थे, वापस आप उस जो खाई है उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और इवेंचुअली वो आपका स्टेट बन जाता है, मूड बन जाता है और उसी मूड में हम सब चीजें तोलने लगते हैं। अगर किसी फ्रेंड से इतना झगड़ा हुआ कि आपका पूरा विश्वास उठ गया तो अगली बार फ्रेंडशिप करने से आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। दूसरा फ्रेंड भी, क्योंकि आपका विश्वास नहीं था तो फ्रेंडशिप दूसरी भी नहीं बन पाई, दूसरी भी नहीं बन पाई तो तीसरी कैसे होगी, चौथी कैसे होगी? यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। जब सर्वाइवल की ये जंग चलती ही जाएगी तो फ्लरिशिंग की बात हो कैसे पाएगी? अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर बोर हो रहा हो तो बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमें नींद ना आए और मैं हर क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार हूँ। क्योंकि मुझे सिर्फ 40 मिनट मिले हैं इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट अपना काम खत्म करूं, उसके बाद क्वेश्चन लिए जाएं। अगर मीरा ने टाइम दे दिया तो आई एम रेडी टू सिट फॉर 2 आवर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो ये होता क्यों है, हम नेगेटिव लूप में जाते क्यों, ये झंझट ही क्यों, ये इमोशन दिया ही क्यों है कि बार में फिर अपने आप को खींच के लेके आओ उसमें से, इतनी मेहनत करनी क्यों पड़ती है? सीधा साधा क्यों नहीं होता? हम ह्यूमन बींग्स हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारी सबसे ज्यादा तगड़ी है, हमारी सबसे पहली नीड जो है वो सर्वाइव करने की है। जब सर्वाइव करने वाली नीड होती है तो जो भी परेशानियां होती है, सेटबैक्स होते हैं या फिर प्रॉब्लम्स होती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नेचुरली जाता है। आप नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव सोचना गलत है, बट दैट इज योर नेचर, यू कैन नॉट हेल्प इट। नेचुरली यू विल गेट डाइवर्टेड टू सेव योर सेल्फ, कि क्या गलत हो सकता है वो आप सोचोगे ही पहले। दैट इज योर पहला धर्म, फर्स्ट धर्म है वो, आप अपने आप को तो बचाओगे ही, तो यू हैव टू डू दैट। अब ये जब नेचुरली हम नेगेटिविटी की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, नेगेटिविटी इतनी शार्प है कि अगर पॉजिटिव आप 3 करते हो तो नेगेटिव 1 उसके कंपैरिजन में बस होता है। दिस इज द रेशियो। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गाड़ी निकालनी हो तो 5 का रेशियो है, 1:5 का रेशियो है कि एक नेगेटिव को हटाने के लिए 5 बार पॉजिटिव आपको करना होगा। वो बहुत लाउड है, नेचुरली मैग्नेट के जैसे आप उसकी तरफ बढ़ते हो, वो आपको ब्लाइंड कर देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज देखने नहीं देता, सेल्फ एस्टीम आपकी कम होती है। थोड़ा ये कैसे होता है ये भी समझना जरूरी है। मैंने बोल दिया और आपने मान लिया ये वाली बात तो पॉसिबल है नहीं, तो थोड़ा साइंस समझने की भी जरूरत है। जैसे ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने जाते हैं, हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन का एक ही काम है कि वो बॉडी को एक्टिव करे और जो प्रॉब्लम है उस पे आपका अटेंशन, पूरा फोकस आपका दिलाए। बॉडी को जब वो एक्टिवेट कर रहा है, आपकी बॉडी को तैयार कर रहा है, तो आपके सारे इम्यून सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो टेम्पररी इतनी जरूरत नहीं है उसको स्लो डाउन करता है और आपकी पूरी बॉडी को ताकत देता है कि अटैक, गो एंड सेव योरसेल्फ। नाउ विजुअलाइज कि इस स्टेट में अगर आप ज्यादा देर रहते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम गया, इम्यून सिस्टम गया, आपका हार्ट पे असर आया, सभी कुछ गड़बड़ हुआ, इसीलिए ये गड़बड़ होती है। जब आपका दिमाग पूरा प्रॉब्लम पे है तो अपॉर्चुनिटी तो मिस होनी ही है, क्योंकि आपका दिमाग फोकस्ड है, ओपन फोकस है ही नहीं, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी तो जाएगी। ब्लाइंड हो जाना मतलब क्या, कि आपका दिमाग एक ही तरफ है तो दूसरी तरफ आप कैसे कर पाओगे? आपको तो पहले सेव करना है, तो क्रिएट करने की बात कैसे सोच पाओगे? So this is what happens when we are into negative loop. नेगेटिव लूप में डेफिनेटली कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये वेल नोन है, अभी इसको ज्यादा डिटेल में जाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू हैव क्वेश्चन आई कैन आंसर लेटर। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अब इसमें से निकले कैसे, वही तो जानने के लिए आए और वेट कर रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे हो, ये हो सकता है वो हो सकता है, उसकी बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर है तो इसमें से निकले कैसे। अगर समझो इसी समय की बात लेते हैं
इतना बड़ा हमारे लाइफ में हमारे साथ ये चीजें हो रही है कि एक चीज से उभरते हैं और दूसरी चीज सामने आ जाती है। कितने फ्रेंड्स से, कितने रिलेटिव्स की यहाँ पे इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो रही है कि घर में 4-4, 5-5 लोगों को उनको खोना पड़ा, या और वो खोने का डर आप अपने घर लेके आते हो, और वो ही डर जैसे ही छींक भी आती है, सर्दी भी आती है, वो प्रेशर इतना बन जाता है कि हालत खराब हो रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कंप्यूटर खोलो, ऑनलाइन क्लासेस है, लेक्चर है किसी का, मेड नहीं आ रही है, घर में सब एक साथ हैं तो 50 तरीके के खाने भी बनाने हैं, एक दूसरे से झगड़ा भी हो रहा है कि यहाँ पे तुम आवाज मत करो, यहाँ पे हमें पढ़ना है। हम देयर आर hundreds of varieties of problem। इतनी बड़ी, इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऑलरेडी है, फिर सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम है। अब नेगेटिव लूप में जाए नहीं बंदा तो करे क्या? अगर मैं बोलूंगी ऐसा मत सोचो, हर इमोशन का एक मैसेज होता है, वो मैसेज को पढ़ो। दिस इज नॉट द टाइम राइट नाउ। अभी फर्स्ट एड का टाइम है। पहले हमें डिसएंगेज करने की जरूरत है उस नेगेटिव लूप से, ताकि हम एंगेज हो सके पॉजिटिविटी से। तो वो डिसएंगेज करने का तरीके क्या है, दैट आई विल शेयर फर्स्ट आपके साथ में, कि आप क्या क्या कर सकते हो जिससे टेम्पररीली आप उस जो नेगेटिविटी है उससे दूर हो सकते हैं। मैं डेफिनेटली ये नहीं बोलने वाली हूँ कि न्यूज मत देखिए, डेफिनेटली नहीं देखना चाहिए, पर ये सारे जनरल वाले तरीके हैं। लेकिन मैं जो भी बोल रही हूँ उसका मैं रीजन समझाना आपको चाहती हूँ कि अगर समझो पहले हम लेते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करिए, हो क्या जाएगा ब्रीदिंग से? शांति मिलेगी। यस, वो शांति क्यों मिल रही है? बिकॉज आपके बॉडी में सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, विच reduces या balances your cortisol। कार्टिजोल ना ज्यादा अच्छा है ना कम अच्छा है। आपके मूवमेंट के लिए कार्टिजोल होना बॉडी में जरूरी है, आपको एक्टिव होने के लिए, आपको एक्शन लेने के लिए वो भी जरूरी है। बैलेंस करने के लिए यू हैव टू कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी है, या फिर एक्सरसाइज आपका जो कार्डियो एक्सरसाइज है, इधर आप ब्रीदिंग कर रहे हो, कार्डियो एक्सरसाइजेस कर रहे हो, या मेडिटेशन कर रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, हेल्दी फूड ले रहे हो, या फिर हैप्पी 8 आवर्स स्लीप। बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो मशीन जो आपकी नॉन स्टॉप चल रही है यहाँ पे, उसको ठंडा करना जरूरी है। और ये सब चीजों से वो ठंडी होगी कि कंटिन्यूस काम ना करे, कंटिन्यूस उसको मेहनत ना करना पड़े कि वो एक दिन शटडाउन लेना पड़े, टोटल शटडाउन लेना पड़े, खराब हो जाए। इसके अलावा ये चीजें जैसे हमको सबको ही जनरली पता होती है कि ये चीजें हमें ठीक होती है, पर ये चीजें क्योर नहीं है। ये चीजों से आप प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकते। टेम्पररीली आप उस चीज को दबा सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। तुरंत आपके पास वापस वो चीजें, सिचुएशन कोई अलग रूप में आएगी, लेकिन आ जाएगी। फिर क्या होगा? उससे हैंडल वापस आप ठंडा करोगे उसको। पहली बार जब आपने एंटीबायोटिक लिया था तो अच्छे से इफेक्ट कर गई। सेकेंड टाइम उसी प्रॉब्लम के लिए जब एंटीबायोटिक लेना पड़ता है तो आपको थोड़ा हैवी डोज लेना पड़ता है, और ये बार बार जब आप एंटीबायोटिक ले रहे हो और प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे हो तो वो काम करना भी बंद कर देता है। तो वैसे ही ये सारी चीजें टेम्पररीली आपको रिलीफ देती है, और बार बार उसी प्रॉब्लम के लिए जब आप ये यूज करते हो तो उसका इफेक्ट होना कम हो जाता है। तो इसको भी जुडिशियसली यूज करने की जरूरत है। जब आप कर रहे हो तो उससे डिसएंगेज होने के बाद में इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम। वंस यू आर एबल टू डिसएंगेज, आप प्रॉब्लम को फोकस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सेकेंड थिंग इज, whenever you are in happy mood या फिर नॉर्मल मूड, एटलीस्ट when you can think, मूड चेक एवरी टाइम, जस्ट एक अलार्म लगा के what do I feel। अगर मैं आपसे सबसे पूछूं अभी आपको कैसा लग रहा है, इफ यू कैन टाइप वन वर्ड, हम जब बात कर रहे हैं तब तक एक वर्ड कि आप अपना मूड, कि आपको कौन सा इमोशन फील हो रहा है, हाउ डू यू फील, इफ यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, जब तक हम दूसरी आगे बात करते हैं। तो हर 1 घंटे में अगर आप एक अलार्म बीपर बजा दें और जस्ट फॉर 2 मिनट्स
2 मिनट समय निकालना मुश्किल नहीं है, जस्ट टू बी अवेयर कि व्हाट डू यू फील। सपोज मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ, सपोज मैं किसी गेस्ट के सामने जा रही हूँ या कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ, और बिफोर दैट आई जस्ट चेक माई मूड, व्हाट डू आई फील। If I'm feeling agitated, irritated, frustrated, and I go in the meeting, what will be the productivity? Definitely अगर बॉस ने अरे भी बोल दिया तो उसके बाद तो गड़बड़ हो गई, कलीग ने कुछ भी बोल दिया तो गड़बड़ हो गई। वही हम शांत मूड में रहेंगे, बहुत ही डिप्लोमेटिकली हम वही चीज ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे। आई एम नॉट सजेस्टिंग डोंट से एनीथिंग, यू हैव टू से व्हेन यू फील बैड, बट हाउ डू यू से मैटर्स। आपका एक्शन कैसा होना चाहिए वो मैटर करता है। तो इसके लिए मूड चेक करना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू फील डिटेल में। अगर बहुत बार मैंने, जब हम वी हैव 1.5 month के कोर्सेज रनिंग टू अंडरस्टैंड इन डीप हाउ टू यूटिलाइज दिस एनर्जी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड, तो उसमें बहुत लोग जब शुरू में आते हैं तो बोलते हैं कि आप इतने सारे इमोशन बता देते हो, 3400 से भी ज्यादा इमोशन इतने आप बता रहे हो, हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इसमें डिफरेंस क्या है नहीं पता चल रहा। आप जॉय और हैप्पीनेस में डिफरेंस बोल रहे हो, नहीं पता चल रहा। एक्चुअली 3400 इमोशंस भी होते हैं, ये तो पता ही नहीं था। लव एक इमोशन होता है पता था, बट लव अपने आप में एक इमोशन नहीं है, 2 इमोशन का कॉम्बिनेशन है, ये तो हम जानते ही नहीं थे। लव इज कॉम्बिनेशन ऑफ जॉय, आई मीन हैप्पीनेस, जॉय एंड रेस्पेक्ट और ट्रस्ट, एक ही कैटेगरी के। रेस्पेक्ट और ट्रस्ट, joy and happiness. You love because you respect someone or trust someone and you are happy with that person. That is love, not by just एक अच्छा चेहरा दिखा और प्यार हो गया, वैसा वाला लव नहीं होता है। Love is when you want to be with someone where you are happy and you trust that person. But people may think कि when you trust someone but you fear and they still live, it is love. No, it is not love. It is called submission. There's so many different emotion you have to know, understand to get the meaning out of it. जब मीनिंग पता चलेगा तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। तो एटलीस्ट अवेयरनेस तो बनती है, डिटेलिंग में हम बाद में जा सकते हैं। अवेयरनेस तो बनती है कि हम जो मोटा मोटी जो 8 इमोशन या 6 इमोशन है उसको पहचान पाए। तो मूड चेक बहुत जरूरी है। जब मूड चेक करते हैं, अगर मुझे लग रहा है मैं सैड हूं, जस्ट सी द सोर्स, ट्रिगर कि मैं सैड क्यों हूं, फाइंड आउट द सोर्स। सपोज मैं सैड हूं बिकॉज मुझे किसी ने रेस्पेक्ट नहीं किया, आई नो हाउ टू सब्स्टिट्यूट और सेलेक्ट दैट। मुझे जो रेस्पेक्ट करता है उससे बात करूं या जो नहीं करता उसको हटा दूं, आई कैन सब्स्टिट्यूट। When I know the source, मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, सेलेक्ट कर सकती हूँ, मैं अपना प्रेशर में इमोशन को मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन इमोशन नहीं पहचान रही हूँ, सोर्स नहीं देख रही हूँ, हाउ विल आई मैनेज? सो टाइम एंड अगेन इफ वी आर जस्ट गिविंग आवरसेल्फ 2 minutes ऑफ मतलब टू थिंक कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, हाउ डू आई फील, तो इमोशन पहचानना और उसका सोर्स पहचानना जरूरी है। Once in a while, when you have time, give yourself 15 minutes in the morning and 15 minutes in the evening. Not much difference, ज्यादा नहीं है, बहुत आपका लाइफ में से कुछ खत्म नहीं होगा, rather accelerate होगा पॉजिटिविटी की तरफ आपका मूवमेंट। ये 15 मिनट में करना क्या है? रिफ्लेक्ट कि जब भी आपका मूड जो रहता है, किसी भी वजह से जो रहता है, आपका एक्शन कैसा होता है। When I'm sad because of this, I behave like this. That means I'm focusing on my behavior. जब भी मैं दुखी होती हूँ इस चीज से, तो मेरा बिहेवियर ये होता है। मुझे रिफ्लेक्ट करना है, जब ये बिहेवियर होता है तो ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा लाइफ में, या इट इज डिविएटिंग मी फ्रॉम माय पर्पस। मुझे कुछ फायदा हो रहा है या मैं अननेसेसरी वो टेम्पररी अपने आप को खुश करने के लिए या बचाने के लिए उसको वो एक्शन ले रही हूँ। जब पता चलेगा अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो उसको भी सब्स्टिट्यूट करना आसान हो जाएगा। चाह रही थी रेस्पेक्ट मिले, लेकिन किसी ने रेस्पेक्ट नहीं दी, इसीलिए मैंने चिल्ला के बात करी। जिस चीज को चाह रही हूँ उसी चीज को मैं
अपने आप से दूर कर रही हूँ। मेरे चिल्लाने से मुझे रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? जो चाहते हैं बिहेवियर उससे रिवर्स कर रहे हैं, तो जो चाह रहे हैं वो मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब मैं ये रिफ्लेक्ट करूंगी कि मेरा बिहेवियर मेरी नीड से मैच कर रहा है क्या, देन ऑटोमेटिकली मैं अपने बिहेवियर को फोकस करके चेंज कर पाऊंगी। सपोज आपके हिसाब से बिहेवियर भी सही है, लेकिन इफेक्ट उसका गड़बड़ आ रहा है। मैंने तो बहुत अच्छा करने की कोशिश करी, मैं बहुत अच्छा आपको समझाने की या देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यू गो होम अनहैप्पी। जैसे बहुत सारी विंडोज बंद हो गई। आई एम होपिंग दैट यू आर नॉट अनहैप्पी। तो मैं अब वो इफेक्ट अगर देख रही हूँ, मेरा बिहेवियर सही है पर वो इफेक्ट नहीं आ रहा जो चाहिए, एट दैट मोमेंट फिर भी मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। I need to change my delivery by asking question so that you get involved and talk to me. I'm just changing my behavior so that I get the effect I want. तो ये रिफ्लेक्शन चारों पे आपके थॉट्स आपके बिहेवियर को कैसे चेंज करते हैं, आपके इमोशंस को कैसे चेंज करते हैं, ये रिफ्लेक्शन सोर्स क्या है, ये रिफ्लेक्शन ट्रिगर्स क्या है, ये रिफ्लेक्शन बिहेवियर क्या है, इसका रिफ्लेक्शन एंड उसका इफेक्ट क्या है, ये रिफ्लेक्शन करना जरूरी है। और जब भी लगे कि ये गलत है या जब भी समय नहीं हो, ये जब बहुत रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा और तुरंत निकल जाता है, बोलने के बाद तकलीफ होती है क्यों बोल गए, ऐसी कंडीशन बहुत बार आती है। नहीं बोलना चाहते थे पर निकल गया उस समय। तो जो रिएक्शन और रेस्पॉन्स में डिफरेंस है, रिएक्शन हम अपने बचाव के लिए निकलता है और रेस्पॉन्स हमारी समझदारी प्रोग्रेस के लिए होता है। तो रिएक्शन ना हो, वो रेस्पॉन्स हो, उसके लिए क्या करना है? हमारे इमोशन, जो ब्रेन का जो अलग हिस्सा है एमेग्डिला और लॉजिक्स, ये दोनों को मिलके काम करना होता है। लेकिन अगर जो इमोशन है वो ही टेक ओवर कर ले पूरे ब्रेन को और कहे मैं ही राजा हूं, तो मुश्किल हो जाएगा। मैं लीड लेती हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसको लीड लेने नहीं देना है, उसके लिए 6 सेकेंड्स का एक समय होता है जब आपके थॉट्स उसको राजा बनाने की कोशिश करते हैं। यस यू आर राइट, इसने ऐसा ही किया था। यू फील मोर बैड, यू फील मोर एंग्री। आपके जो विचार है उसको राजा बनाने की कोशिश करते हैं। उस समय को आपको पॉज गैप, जिप योर लिप्स, अपने जीबान पे ताला लगा दे, अपने एक्शन पे ताला लगा दे और वो 10 सेकेंड शुरू के 6 इसलिए कि कई बार होता है छूट जाती है गाड़ी, तो 10 सेकेंड के लिए कुछ ना बोले, कुछ एक्ट ना करें। और वो 10 सेकेंड में करना क्या है? लेकिन गुस्सा थॉट तो अंदर खेल रहे होंगे, आप भले ही चुप हो जाए पर दिमाग तो चल रहा होगा, तो वो थॉट्स को नहीं गड़बड़ करने दें। उसके लिए इमीडिएटली एक्टिवेट अदर साइड ऑफ योर ब्रेन, इन द सेंस आपका लॉजिक और आपका जो लैंग्वेज वाला ब्रेन है उसको एक्टिवेट करिए। हाउ विल यू डू दैट? रिवर्स गिनती करो। आपने सुना ही होगा, बहुत लोग बोलते हैं रिवर्स गिनती करो, शांत हो जाओगे। साइंस ये है कि आपका इमोशन का ब्रेन अलग है, लैंग्वेज का अलग है, लॉजिक्स का अलग है। तो जब दूसरा ब्रेन में आपकी एनर्जी जाएगी तो ये ब्रेन ठंडा होगा नहीं होगा, और थॉट्स इधर जाएंगे तो वो यहाँ के हो जाएंगे। थॉट्स एकदम आवारा होते हैं, वो जहां चले गए वहां अपना हो गए, उसको बना लिया। तो आप इधर यूज करना चालू कर दीजिए, यहाँ से गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा इमीडिएटली लॉजिक टेक ओवर करेगा और आपको बताएगा कि शायद ये एक्शन आपका या ये बोला हुआ नुकसान कर सकता है। सो दैट मैजिकल पॉज गैप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। These are the first 8 things जो हम कर सकते हैं in times of immediate, जो प्रेशर इमीडिएट हो रहा है कि तुरंत आपको कहीं से खबर आई कि ऐसा ऐसा गलत हो गया है। कोविड में आई कि आपके फ्रेंड बहुत बीमार है या यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है, एंड सडनली अंदर से हार्ट बीट चालू हो गई है, धड़कन चालू हो गई है, या किसी ने बोला कि ये काम आपका खराब हो गया है, या बिजनेस में ये आ गया है, या वॉट एवर द प्रॉब्लम है। वो जो 10 सेकेंड का समय है, एवरी इमोशन हैज सम मैसेज। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर बताया जाए कोविड को, मीरा यू कैन स्टॉप मी इफ यू फील दैट आई एम यूजिंग मोर टाइम, यू कैन स्टॉप मी। तो अगर कोविड को मद्देनजर रखकर बात करी जाए कि डर सभी को है,
हर चीज का डर है। अब डर को दोस्त कैसे मान ले, उसको रिसोर्स कैसे मान ले? डर को तो हटाना है, दबाना है। डर को ना हटाना है ना दबाना है, क्योंकि डर जब तक कूदता रहेगा, गुस्सा जब तक, हर इमोशन तब तक आपके सर पे हावी रहेंगे जब तक वो काम उसका पूरा ना कर दे। वो जिस काम के लिए उठ के खड़े हो रहे हैं, जब तक उसका काम नहीं हो जाता तब तक वो उछलते कूदते ही रहेंगे। उसको अटेंड करना जरूरी है, उसको दबाना भगाने से कुछ नहीं होगा। इट विल कीप कमिंग बैक। सो व्हाट इज दैट मैसेज दैट फियर हैज टू ऑफर? डर यानी आपका कोई नुकसान होने वाला है, थ्रेट है किसी चीज को। कोविड सिचुएशन में हेल्थ को थ्रेट है, राइट? तो अभी थ्रेट है, उसका सोल्यूशन क्या है? द मैसेज व्हाट फियर इज गिविंग यू इज कि आपका कुछ नुकसान होने वाला है, बचाओ, प्रोटेक्ट, दैट्स ऑल। वो पोस्टमैन है, उसने मैसेज डिलीवर कर दिया, डर को हटाओ। ओके, डर मैसेज दे चुके हो आप, आपने मुझे बताया है कि आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? आई नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, मुझे मास्क पहनना है, मुझे हैंड हाइजीन रखना है। अगर सर्दी खांसी कुछ होती है तो जो भी मेरे को ट्रीटमेंट लेना है या जो भी करना है, आई विल डू दिस, आई एम प्रिपेयर्ड। कई बार सेशंस में हम बोलते हैं हाउ आर यू प्रिपेयर्ड फॉर कोविड? घर में अगर किसी एक पेशेंट, हमने अपना रूम एक बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट ने एक बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया। ओके, डर तो सबको लगता है, बट एज यू सेड, डर का मैसेज लेके वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो व्हाट डिड आई डू कि मैंने अपना रूम तैयार करके रखा है कि कोई भी, कि वहां पे अपना जो भी सामान जरूरत का होता है, सो दैट आई कैन गेट क्वारंटाइन। दवाइयां सब है, ट्रीटमेंट है, हमें सिर्फ अलर्ट रहना है। तो हम अलर्ट जो है, जो सिम्टम्स है उसके लिए अलर्ट हूँ, मैं अलर्ट हूँ क्या क्या नुकसान हो सकता है उससे, एंड आई एम ऑल रेडी। व्हेन यू आर रेडी, नथिंग कैन गो रॉन्ग। व्हेन यू आर अलर्ट, नथिंग कैन गो रॉन्ग। फिर फियर भी नहीं आएगा। व्हेन फियर नोज कि यू आर रेडी, बट आप कहीं ना कहीं चोरी कर रहे हो तो डर बार बार आएगा। कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो तो डर आएगा कि नहीं, सब करके भी हो रहा है ये चीज, तो आपको पता है अंदर सब क्या हो रहा है। ओके, अब डर अगर किसी और चीज का रहा है, इतना ही सारे हो रहे हैं, तो क्या ये मेरे प्रिकॉशन सफिशिएंट है? इतने लोग आफ्टर टेकिंग प्रिकॉशन भी आ रहे, तो ये डर वापस आ सकता है। सो फाइंड आउट व्हाट एल्स यू कैन डू, दैट्स ऑल। सेम गोज विथ एंगर। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा अपने आप में गलत नहीं है, डर अपने आप में गलत नहीं है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर गुस्सा आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ थ्रेट टू सम आइडेंटिटी। आपको बाउंड्री बनाने की जरूरत है। You need to create your limits or you need to show the other person their limits. उसके लिए मारना पीटने की जरूरत नहीं होती है। There are different ways to handle anger, express anger. Crucial conversation की बात करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके हैं जिनसे हम ये कर सकते हैं। So these techniques are used to flourish. कि पहले हम अपने इमोशन को जब मैनेज करना सीख जाएं, समझना सीख जाएं, इन टाइम्स ऑफ प्रेशर डिसएंगेज करना सीख जाएं, तो हम इन्हीं इमोशंस को अपनी जब मेंटल स्थिति स्टेबल है उसमें यूज करके हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। Whenever you are going out to do something for the first time, तो आपको कुछ ना कुछ इमोशन आएगा, either frustration, irritation, motivation, whatever, वो इमोशन आएगा। उस बेस पे आपको समझ में आएगा how prepared you are. If you are frustrated, that means something is not there in your hand. कुछ कंट्रोल आपका लूज है, जहां आप नहीं कर पा रहे। इरिटेशन है मतलब कोई आपकी बात नहीं मान रहा। मोटिवेटेड हो यानी there is a hope. So every emotion will give you some message and you can prepare accordingly and you can move forward. It's a beautiful journey of emotions. आप कितने भी prepared physically हो, financially prepared हो, लेकिन अगर emotionally prepared नहीं हो, आपने लाखों business में लगा दिए हैं, आप physically भी motivated हो to do good, but यहाँ से emotionally motivated नहीं हो, emotionally charged up नहीं हो, active नहीं हो, alert नहीं हो, so you cannot do anything. Emotion hygiene को, इमोशन इम्यूनिटी को, इमोशनल इम्यूनिटी को नॉन स्टॉप बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I see time is running. If you want to ask some questions, please do ask.
I can see a few questions. What to do if before meeting I feel agitated? How to overcome this emotion? ये किस नीलाक्षी ने पूछा है. As I said, disengage to engage. For meeting, you are going to engage into some productive discussion. So you have to disengage from your emotions. और जो आपको पहले तरीके बताए, activate your other brain, other area of your brain. Then ये हो गया टेम्पररी जब आपने मूड सेटिंग नहीं करा हुआ हो. अब उस बॉस से आपकी सालों पुरानी दुश्मनी, उस बॉस को आप वैसा ही देखते हैं कि ये तो कभी भी मेरे साथ में अच्छा नहीं कर सकता, तो फिर ये वाला कारगर नहीं होगा. कितना भी आप दूसरा ब्रेन एक्टिवेट कर लें, कितना भी वो कर लें, वो तो उसका चेहरा देख के वापस गुस्सा आना ही आना है. तो ऐसे समय में वो शॉर्ट टर्म फर्स्ट एड काम नहीं आएंगे, लॉन्ग टर्म वर्किंग आपको करना पड़ेगा. तो लॉन्ग टर्म करने के लिए तो समय लगने वाला है, तो करें क्या? उस समय कुछ नहीं करना है, जिप. इस चीज को, मुंह को बंद रखें. जब भी बोले सोच समझ के बोले और फोकस अपनी तरफ रखें कि ये बोलने से मेरा नुकसान होगा. आपको कितना भी बॉस इंस्टिगेट करे, आपको कितने भी लोग इंस्टिगेट करे, लेकिन आपके मुंह से शब्द वही निकलेंगे पॉज गैप दे देकर. वो स्पीड ब्रेकर लगा कर ही शब्द निकलने चाहिए, ताकि डैमेज कंट्रोल कर सके कि जितना नुकसान हुआ है वो तो है, उसको बढ़ाए ना, कम से कम उसको वहीं अरेस्ट करें, ताकि जब समय मिलेगा हम उस पर काम कर सकते हैं, आगे और उसको बढ़ा नहीं दें. तो उसके लिए एटलीस्ट यूज योर वर्ड्स राइट, यूज योर एक्सप्रेशन राइट, सो दैट जितना बचा हुआ है उसको ना खराब कर दे. एंड देन कम आउट इन योर स्टेबल माइंड. देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं है, ओनली आपको उस पे मेहनत करना है. एंड इफ यू फील यू नीड टू वर्क ऑन दिस, वी हैव 1.5 आई थिंक इफ मीरा कैन फॉरवर्ड सबको अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट 1.5 month का जो just 1 hour in the evening, Monday to Friday you have to attend, and you can go deep into yeah, I'll message. More questions if you can read out. Any more question you want to ask? Yeah, Ms. Rapti. It's Nisha Patel. Yeah, hi Nisha. Yeah, hi. Wonderfully, you explained that we should keep calm. But you know what is happening, despite of knowing all these things that we should keep calm. But there are moments when we feel that at this moment, calm is not required. We need to revert this thing back. Not in the sense of this, the COVID and these things. I'm talking about dealing in office things or otherwise. When at times we feel that we need to lose our temper, even if it is not, we should not, but people don't understand if that thing is not let them. So at those moments, sometimes it happens that we have to lose our temper, we have to leave our calm. So is that, what do you say about that? Is that right, or we should not do that? See, for me, silence and violence, both are fool's choice. I'll tell you why I am saying this. डरना या डराना, भागना या लड़ना, ये फूल्स चॉइस है, बिकॉज इन दोनों में ही आपका खुद का नुकसान होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेरेंटिंग में आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि आप बच्चे को आज डांट के समझा तो दोगे और बच्चा समझ भी जाएगा, बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट पावरफुल राइट नाउ. बट व्हेन चाइल्ड ग्रोज, becomes something, then he will answer back. Same goes when in office. Till the time you are powerful, you can show your power to make people understand. But बोलते ना, इतना भी किसको मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए. The day will come when they will stop giving respect to that word, and then it goes wrong for you. तो आप चुप भी रहते हैं. काम का मतलब ये नहीं कि चुप रहना है, कि कुछ बोलना नहीं है. चुप भी रहते हैं तो आपका नुकसान है. और ऐसा बोलते हैं जिसमें ब्लेमिंग, शेमिंग, ह्यूमिलेशन, ऐसा वाला अगर शब्द यूज हो रहे हैं तो भी आपका नुकसान होता है. तो करें क्या? इसके भी तरीके हैं. एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्रेशन, असर्टिवनेस, अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव ये दोनों रॉन्ग है, लेकिन असर्टिवनेस वेर यू से थिंग्स
where you what you mean with a stern voice, and people should get frightened ki, yes, because of your aura, because of your knowledge, because of your ability, people should do the work, not because of your language or your pitch of your language. So why you are doing that, what benefit they are going to get out of it, so that explanation is important. I want to add on. Can I give one example? In my 25 years of parenting, I've never raised hands on my kids. But when it comes to respecting, they fear, not because I will do something, because if I don't approve, that means there is something wrong. It's not the fear of not obeying or sort of, but the respect between each other. Yeah, you were saying something, Vandana ji? It was like in the office when Nisa is talking, is sometimes we have expectation that this Right. guy needs to do this thing, and we as a chartered accountant expect कि Right. ABC उसको समझ में आ ही जाना चाहिए, and Right. if that person doesn't behave in that pattern, and then we lose our temperament. So Right. whether that is advisable or not, that was her question. That's what I feel. We have certain limitations. Like you are a graduate, so then you should know this basics. तो वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल है वहाँ पे Right. प्रॉब्लम हो रहा है. Right. But उस टाइम पे थोड़ा सा हमें गुस्सा करना चाहिए. तो व्हाट यू आंसर ना, दैट आल्सो आई थिंक मेड इट राइट के से विद सम फर्म वॉइस, नॉट देन जस्ट पुलिंग ऑन देम. Right. इतना भी गुस्सा मत कीजिए कि उसको फिर बाद में फर्क ही नहीं पड़े. Right. बट आइदर ट्रेन देम, एजुकेट देम, फिर उसके दिमाग में नहीं जा रहा है और आपको जो डिलीवरी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उस इश्यू को कैसे एड्रेस करें. वो प्रेशर टाइम में प्रॉब्लम होता है. प्रेशर टाइम में हमें लगता है इतना तो उसे कर देना चाहिए था, और Right. वहाँ पे प्रॉब्लम होता है. बस उसको कैसे निजात पाए. So that's what I wanted. Maybe I could not explain in detail. Blaming, shaming, raised voice, dampens everybody's. It's साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए आपका म्यूट करना पड़ेगा वंदना जी शायद. या थैंक यू. तो जो मैं आई वॉज अगेंस्ट द रेज्ड वॉइस, आई वॉज अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन पार्ट, आई वॉज अगेंस्ट द ब्लेमिंग शेमिंग पार्ट. I was not against the expectation part. Yes, you should be expecting when you are paying. You should be expecting when you are teaching someone. But that have the right way of expressing. That should have the right way of expressing. For example, अगर anger आपको express करना है, अगर आपका tone में blaming, shaming आ रहा है, it will not solve the purpose, because that person will not respect you today. The person may listen to you, but not tomorrow. So purpose is not solved. But is it genuine? Is it required? Yes, it is required. When it is required, all you need to change is the strategy, where the person fear, where the person does. So you have to find out strategy according to the person's temperament, personality. If you see the person is lenient, then you need to make him extra work. Means work. You have to finish this and you have to go. There are soft punishments as well. There are positive punishments as well, that you have to finish this and then go. You are allowed to do, but you cannot humiliate. You cannot because that will not solve the purpose. Eventually, it spoils the. Right. Yeah, you are right, Ji. I know. I mean, it's not easy in limited time. Yeah. Sometimes you have limited time. There's no time for parenting. Everyone. 2 बच्चों को पेरेंटिंग करने में जान निकल जाती है, तो इतने सारे अगर ऑफिस में कर रहे हैं तो होता है. बट अगेन इफ यू लाइक देयर इज an इन्वेस्टमेंट फॉर एवरीथिंग, कि फ्यूचर में आपको कंटिन्यूस मेहनत ना करना पड़े. And I think that is why interpersonal skills के classes रखे जाते हैं. See, basically, that is why we need. And this is a real good thing you kept her lecture. I am really happy to know that Ahmedabad team is rocking. Thank you so much. Thank you, Manna. Always seeing you energetic, Manna.
That's an Yes, inspiration. phobia is harmful for overall health. Yes, phobia is harmful, बिल्कुल harmful है, क्योंकि एक fear है जो आपको हर चीज के लिए रोकता है करने के लिए. जब रोकता है, बॉडी में कार्टिसोल पूरे समय रहते हैं, अलर्ट आप रहते हो हर चीज के लिए, तो आपका सारा जो इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या आपका हार्ट का पंपिंग ज्यादा, अपना जो पल्स रेट है वो ज्यादा होती है. जब सारा कुछ ओवरड्राइव में काम कर रहा होता है तो डेफिनेटली हेल्थ के लिए सही नहीं है. उसको ओवरकम किया जा सकता है इफ यू यूज राइट टेक्निक्स, इफ यू मीट. Good evening, Trapti. I have a question. Yeah, please. A woman all the time feels threatened, and she all the time is under Yeah. pressure to prove herself with the numerous expectations, Exactly. not only professionally but personally. Right. And at times there is a sense of competition where she, she's competing with herself all the time, trying to be the best on a number of parameters, be it as a mother, be it as a professional. So how does one deal with this kind of a scenario, which every one of us sooner or later we face? Right. This is very unfortunate situation, especially India में तो बहुत ज़्यादा है. जब day one से rather womb में है, तब से बताया जाता है कि who you are. Our identity is created by someone else, and we carry it forward by outsourcing. Outsourcing in the sense, am I good? We ask. We don't know we are good looking. We ask others. मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, you tick mark. ये सारा जो बचपन से दिमाग में डाला है, तो सेल्फ एस्टीम कितना भी हो, आप अपने काउंटर पार्ट से सेल्फ एस्टीम की तुलना कर सकते हो, लेकिन अपने अपोजिट सेक्स वाले से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये बचपन से किया है. Now how can it be reversed? कहीं ना कहीं जो चीज हुई है, स्कार तो होगा ही, but there is nothing in this world, I mean not in these terms, I mean skills, which cannot be improved. Yes, it can be improved. Once you start talking to yourself, once you start knowing yourself, who you are, what you can do, and stop outsourcing things for yourself. जब तक आप आउटसोर्सिंग बंद नहीं करेंगे, जब तक अंदर नहीं झांकेंगे, जब तक कुछ चीज ठीक नहीं होने वाली. For that, step by step, एक एक चीज में you have to tell yourself what you can do, not prove others what you can do. Talk to yourself, not others. That is the problem. We are outsourcing our happiness. When we don't outsource our happiness, our self-esteem will go up immediately. Thank you so much, Trapti. Thank you so much. Again, I will interrupt. This is my favorite topic, success versus happiness. I speak on this topic. And I always say, it is what you have, you can share with others. So be happy within. वो अपने अंदर ही happiness है, कहीं और मिल भी नहीं सकती है. And always affirmation ही रखने का, सुबह उठ के, I am the best and my day will be the best. Today is the last day of the life and I will rock it, baby. तो कल का वैसे भी पता नहीं है ना. You know what are your capabilities are. Yes. What you can achieve. Yes. So when you know your strength, you have to tell yourself what you can do and what you cannot do. Except if you feel you cannot do this, it's okay. It's time to learn if I don't know. You don't have to feel bad about it. You don't have to stop yourself for this. If you don't know, and nobody knows anything, everything rather. Sorry, not anything, everything. We all are learning. Every time we are learning. So if something comes your way कि आपको नहीं पता है, तो it's okay. This is the time to learn. Good, I came to know about it. But when you know something, you don't have to make others sign on it. Yes, I know. There's a question, ma'am. Do you agree and would also promote the fact that conveying anything through body language is more effective than necessary? Sorry? So there's another question. How do you stop seeking validation from others? You will seek validation from others only till you don't know yourself. Start knowing yourself. Start feeling yourself. हम अपने आप को feel ही नहीं करते हैं.
हम अपने आप को जानने की तो बात बहुत बाद में आती है, हम अपने इमोशंस को भी नहीं जानते. What I feel, when I feel happy, I feel it here. When I feel angry, I feel it here. I don't know my body, I don't know my emotion. How do I know what I do and what I'm good at? So know yourself first, and then what you are. You will stop taking validation from others. I have done this in my life. I was seeking till teenage. I was mad at everyone. ये नहीं हुआ, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया. What stopped me? One day I just read, now you are a teenager. Now car का जो steering है वो आपके हाथ में, drive the way wherever you want. Yes, now I can do whatever I want. I can't blame anybody. अभी तो मेरे हाथ में है. That day my life changed. I have seen both, where I was very low on self-confidence, and now I'm extremely high on my self-esteem. I'm not overconfident on my self-esteem. I know my worth. I totally know my worth, and because of that, I am able to achieve whatever I want, I wish for. If someone has inferiority complex while dealing with you, how do you okay, so again emotional intelligence यहाँ पे काम आता है. अगर किसी को inferiority complex है, that's what I'm understanding, अगर right है तो, while dealing with you, how do one go about it? अगर किसी को वो complex है आपके प्रति, तो आपको कैसे deal करना है? First of all, think, is it important? Is that person important in your life? Is that person going to make any difference in your life? If it is important, then go for it. Otherwise, you have very less time for yourself and for your work. If it is important, you are going to achieve through that person, then yes, you have to deal with it, and emotional intelligence will help you in that. By empathizing what that person is having inferiority complex about, why that person is feeling that way the person is feeling. There is something missing, and there is enough for everyone. Let's do it. Let's help that person, whatever he is missing out. And you don't have to deal with it. You just have to walk with that person. You don't have to fight for anything. There is enough for every one of us. हमें किसी चीज से डील करने की जरूरत ही नहीं होती है. We just have to find out, empathize what that person is missing out. So there's one more. How does one deal with an imposing personality? Yes, again, same thing. Everything which troubles you because, I mean, किसी और का आपको कुछ चीज तकलीफ दे रही है. Nobody is good or bad. कोई भी अच्छा और बुरा नहीं है. वो एक इंसान है. अच्छा है because उसके पास कुछ resources है. बुरा है because उसके पास resources नहीं है. और वो इम्पोज कर रहा है, वो जेलस हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, just because he's missing out on something. If the person matters, yes, go for that. Understand that person's requirement and try to help him out or her out. Or else just let go and move on. How to manage situation when someone not have any concern? Once again. How to manage situation when someone not have any concern, always come in between all the matters and you're not able to speak, just to zip your lips to avoid bad situation. Yes, bad situation कब होती है? जब we also try to force, हमें भी force करना पड़ता है जैसे वो person कर रहा है. तो हम जैसे as I said, silence and violence, तो हम दोनों उस condition में, एक जना चुप हो गया, एक जना शेर बन रहा है, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं. But how to assertively put your point, finding the gap, making things clear is what we need to learn. Art of communication is very important in this matter. You need to learn art of communication. तो automatic सारा कुछ हो सकता है. How to deal with gaslighting? Oh, okay. वही चीज हो गई कि कोई अगर create your aura as कि चाहे कोई कितना भी काड़ी लगाए, अगर कोई मेरे बारे में बोल दे कि इसने ऐसा आपके लिए कहा है, my friends will not believe because they know who I am and what I do.
I have made certain values. I have strong values in my life on which I run my show. And what I am inside, or what I am with one friend, I'm exactly same with another friend. I don't behave differently. I say what I do. So definitely nobody can do anything. Temporarily हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो. You sit calm. चीजें अपने आप fall into place. जो चीज आपकी है वो आपसे कोई लेके ही नहीं जा सकता जब आपका क्लैरिटी है वैल्यूज की. तो फिर व्हाट इज गुड अकॉर्डिंग टू यू? कीपिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स विद इन अस और शेयरिंग विद योर बेस्ट फ्रेंड्स. Okay, why do you want to share? Number one, why do you want to share? To get light? Yes, you can share if you trust that person, that person will only talk about emotions and feelings, not about incidences. Then you should also be having that maturity not to word by word share your personal things, which is actually not required. You can talk about feelings that I fear due to this situation, what can be done. But when you start sharing, जब आप sharing start करते हो कि सासू माँ ने ऐसे बोला था, तब husband ने ऐसे जवाब दे दिया, फिर उन्होंने ऐसा किया, so you are trying to blame someone. And because of that, you are trying to feel good inside. When you are trying to blame, whether it is that blame is right or wrong, we are not talking about that blame. Blame is blame. हुआ होगा, same वही चीज हुई होगी. लेकिन eventually by telling that story, you are pleasing yourself कि I am good and they are bad. तो वो story तो आगे और cultivate होनी है, बढ़ने ही वाली है, नमक मिर्ची लगने ही वाली है. But if you say कि my family members, if they behave in certain way, I feel like this, facts and feelings. When you communicate with facts and feelings and the person is matured, automatically आपको solution मिलेगा. But if you think the person is not matured, you just want to share to feel light, please don't do it. Because nobody bothers about, everybody has their own set of problems. तो वो कभी भी ये चीज सिर्फ मजे के लिए सुनी जाती है, टाइम पास के लिए सुनी जाती है. So if you want solution, then you will share only facts and stories. How to stay positive where everyone around you don't like you and always instigate you to lose your confidence and temper? Yes, very good question. Thank you so much for asking this. Self-esteem की जो बात हुई थी, सबसे पहले why people do not like you. There has to be some reason for not liking. Just a moment. There has to be some reason for not liking. So या तो you have to focus inside or out. Inside what you lack, work on that, develop those skills, try to accept and understand your issues. Acceptance is very, very important. Where we keep a blindfold, हम अपना बंद करते हैं, but जैसे ही दूसरों की बात आती है, we start talking. हमारा वैल्यू सिस्टम राइट है क्या, वो सब पहले चेक करने के बाद लुक आउटसाइड. इज इट बिकॉज यू आर टू गुड? बहुत बार होता है कि जब आप बहुत ज्यादा लाइट में हो ना, लाइमलाइट में हो, तब भी लोग आपको पसंद नहीं करते. बहुत बार ये कंडीशंस भी आ जाती है. तो क्या चीज है, अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, बाहर क्या है, उसको चेक करके इफ इट इज द रीजन, सेल्फ एस्टीम इज द रीजन, डेवलप इट, ब्रिंग योर स्ट्रेंथ अप. एंड इफ इट इज आउटसाइड, क्रिएट द सिचुएशन यू वांट outside. How can one consistent loving? How can one be consistent in loving and respecting their own self? And this is not done on same instance, on some instance, and only when you are happy or motivated for it. Yes, you are answering your question. कि खाली motivated हो आप अपने आप को प्यार करने के लिए, तो आप तो consistency यहाँ पे खुद ही छोड़ रहे हो. Love yourself no matter what happens. You're everything you, when you are into this world. तो आप वही एक आपका achievement है. Every day when you are able to breathe, get up in the morning and you are able to breathe, love. For that reason I'm able to breathe, my body is able to breathe. Every movement is for appreciation, every movement is for gratitude or achievement. चपाती गोल भी बना ली तो अपने उस पे भी कर दो, आज तो मस्त बनी, आज नक्शा नहीं बना है. उसमें कितना समय लगता है. लव योरसेल्फ. ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, वो भी चेक करते रहना जरूरी है.
तो उसके लिए एक्सेप्टेंस भी उतना ही जरूरी है कि नहीं बनी तो भी ठीक है यार, आज तो नक्शा बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह, just be natural. What I want to say is just be natural. You don't have to be manipulative कि ये है तो ऐसा होगा वो होगा। Just be, बच्चा पूछता नहीं है कि क्या करूं, बच्चा बस करता है जो उसके दिमाग में आता है। Just be a child inside. आपको सिर्फ बच्चा बनना है अंदर से। If I'm missing some questions, please let me know because I'm randomly selecting. And hope I'm able to. I think everybody will have different capacity of handling the pressure. Yes, definitely. आपका self control इसमें बहुत काम आता है. Self control is like muscle. हर किसी का pressure handle करने का capacity, stamina अलग-अलग होता है, बिल्कुल होता है. हर किसी का सेल्फ कंट्रोल, प्रेशर के लिए सेल्फ कंट्रोल, अगर मैं आपको बोल रही हूँ 10 सेकेंड आपको पॉज गैप लेना है और ये दिन में 100 बार आपको करना पड़ रहा है, तो शुरू के 10 बार आप कर लोगे, लेकिन आगे के 90 बार आप नहीं कर पाओगे अगर सेल्फ कंट्रोल कम है तो। 90 बार कर लोगे, लास्ट के 10 बार नहीं कर पाओगे, कोई लोग पूरे 100 बार कर पाएंगे। ये होता क्यों है? कम और ज्यादा सेल्फ कंट्रोल क्यों है? सेल्फ कंट्रोल एक मसल है। बॉडी बिल्डिंग जैसे आप अपने मसल बिल्डिंग करते हैं, वैसे सेल्फ कंट्रोल का भी स्ट्रेंथ बिल्ड किया जा सकता है, सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाया जा सकता है। ऑल यू नीड इज टू प्रैक्टिस। सो कैपेसिटी सबकी सेम है, हम अपनी कैपेसिटी को लिमिट कर देते हैं। We limit our capacities. So just go out and explore what you can do. Anything else? Very true, Tapti ji. I think most of the questions are delivered. I think any other questions anybody is having? Yeah. Thank you, Ms. Tapti ji. You have wonderfully delivered all the questions, Thank and you so much. it was really a wonderful and interactive session. Actually, Would हमारे like, sorry, if I can add something again, I'm just, since I'm very close to this subject, so I'm repeating this. Do join our 6 weeks program. It will definitely bring huge change into your life. Our next session is starting from 18th of April, 1 hour Zoom session, 5 to 6 p.m. Monday to Friday you will have. 18th is only first session is on Sunday, introductory, otherwise Monday to Friday. If you want to join, please message through Meera. You can just reach out through Meera. Thank you so much. Yes, we will surely forward this this message in our group, so everybody will come to know that and take the benefit of that. And Trapti ji, wonderfully, you have very beautifully, and I think wonderfully expressed the emotions which we all women, as a woman, we all are facing, different types of moods which we all are facing. Actually, being women, हमारी हालत ये होती है कि घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, that time there is something is there at last moment कि ये हो गया है, ये चाहिए. And when we are leaving our office, at that time also same thing is there. The last moment पे client or boss or whatever, last moment पे things come. So at that time, it is really needed to keep ourselves calm. And that you have wonderfully explained. Actually, being woman, मुझे लगता है वैसे तो हर किसी के लिए ये जरूरी है. But being woman, that is there in ourselves. But being woman वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, because we are sometimes overdoing, and by doing these things over, हम हमारे ऊपर प्रेशर डाल देते हैं. So उसीलिए when we can do जितना हमारी capacity है उतना करें. So I think automatically that calm will come, and that's what you have said, that know yourself, what you can do. अपने आप को पहले पहचानो, अपने मूड को चेक करो. So wonderfully you explained, and the best thing I like is we should know the difference between reaction and response. So that is a wonderful thing I realized, because normally it happens that हम बहुत जल्दी से reaction कर देते हैं. We don't know the difference between reaction and response. So हर situation के लिए ये बहुत जरूरी है. And even we all are knowing all this stuff, but sometimes people like you, जो वो अंदर की चीज जो कहीं छुपी होती है उसको जागृत कर देता है, and we realize कि no, it is the time to keep calm and lead on. So thank you very much, Trapti ji. On behalf of this Women Members Empowerment Committee of Ahmedabad, of ICI Ahmedabad, I thank you from the bottom of my heart for this wonderful session. And if possible, after this corona, we'll try that you can come in person and deliver all these wonderful things with us personally.
And Pleasure. as per my nature, on a lighter note, I would say to all the wonderful, beautiful ladies, keep calm and lead on. Keep calm and lead on to live life like a lady dawn. With these words, I Great, will- Nisha. This is wonderful. A nice quote that you have shared. And since Trapti madam has, lightened us, and we have had a beautiful session, and we have Vandana with us who sings beautifully. With your Yeah. kind permission, I would request her to, sing a few lines before we close the session. Sure, sure. There are two songs always comes in my mind whenever the session of this kind of going on. एक है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़ी गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है छाँव धूप. तो इससे आपको समझना है कि छाँव धूप तो आने वाले हैं, बट जीना कैसे चाहिए. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस ये एक पल है. तो मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस अवेलेबल टाइम which is the present to us. Great, Vandana. Thank you so much. Thank you, Vandana. Thanks for giving me an opportunity to sing. मेरा दिल ना always garden हो जाता है. Best thing about you, Vandana, is your positivity. I always appreciate that. I love your positivity. Actually, seeing you, talking to you, it seems as if power pack andar aa jata hai. It's like that. So just keep it on and keep motivating us. And thank you very much, Nandita Trapti ji, for this wonderful session. And I think with these words, we are finishing this meeting. Thank you very much, all of you. And please join every month. We are going to do this meeting, and I request all of you to be the part of this meeting, and let's make a good group of ours and motivate each other like this. Thank you very much, all of you. I think now we can finish the meeting, Anjali.